Good evening, students. Actually, you are knowing that we are studying about the haloalkane and haloarine, and this is the lecture 3 in this very important topic, the nomenclature of the halogen derivatives of hydrocarbon. We will study in this IUPAC system as well as the common system of the naming. As we know, according to the IUPAC system of nomenclature, IUPAC. If any halogen is present in the carbon chain, so halogen will be called as a prefix. So root word in this side prefix with number and then in or ion. Suppose I am taking the first example. This is CH3 single bond CH2 single bond Cl. We will call chloro for Cl as a prefix. That's mean before the root word we have to use this रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स में हम क्लोरो ब्रोमो या आइडो लगाएंगे विद नंबर. नंबर कैसे लेंगे? नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द साइड 1 2. क्लोरो जहां पे लगा उस कार्बन पे कम नंबर आना चाहिए. सो क्लोरो विल बी अटैच्ड एट कार्बन नंबर 1 एंड इट विल बी कॉल्ड 1 क्लोरो. देयर आर two carbon that means root word will be at and attached with single bond, so A. 1 chloroethane. अगर आप 1 नहीं भी बोलेंगे that will be correct. 1 को आप एक्सक्यूज कर सकते हैं. 1 नहीं लिखेंगे तो आपका चल जाएगा, क्लोरोएथेन चल जाएगा. लेकिन और कोई नंबर आता है अगर और आप नहीं लिखेंगे तो that will not be excused. This is the IUPAC name of this structure. And how you will write the common name? This is 2 carbon, so it will be called ethyl chloride. कॉमन नेम में हम Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड, I को आयोडाइड, F को फ्लोराइड और बाद में लिखेंगे. इसमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है. ये कार्बन जो है, कार्बन के अकॉर्डिंग अगर आपके कार्बन है CH3 है सिंगल बॉन्ड, सो मेथाइल. CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 या हम इसको C2H5 लिखें, सो एथाइल. CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड एंड प्रोपाइल और CH3 सिंगल बॉन्ड CH यहां पे बॉन्ड खोलेंगे अगर तो आइसोप्रोपाइल. ये कॉमन नेम के लिए बता रहे हैं. और IUPAC नेम में नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन उसको बोलेंगे और अगर कोई साइड चेन में है तो फिर उसके अकॉर्डिंग मेथाइल एथाइल बोलेंगे. दिस विल बी द IUPAC name 1 chloroethane and ethyl chloride is the common name. Now the next one, second example, CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond I. First of all, I am going to write the IUPAC name starting from the numbering. I is attached in this carbon and this is the terminal carbon 1 2 3. There are 3 carbons 1 2 3. So name will be 1 iodo, 3 carbon, that's mean pro,
and single bond N, 1-isopropane. And what will be the common name? There are 3 carbon, you can see this one, 3 carbon, and bond is open in the terminal carbon. This is terminal carbon. So N-propyl iodide. Now see another example. CH3, single bond CH, single bond I, single bond CH3. Numbering will start from the terminal carbons, either this side or this side. So if we take number 1, 2, 3, so this carbon where I is attached is number 2. If we start from this side, 1, 2, 3, so still number 2. So both the numbering order is correct. You can start numbering from this side or this side. दोनों तरफ में से कोई तरफ से भी नंबरिंग करेंगे, इसमें दोनों सही है. आई किस नंबर पे अटैच हुआ? 2 पे. IUPAC नेम लिखेंगे तो पहले 2 लिखेंगे. अब यहाँ पे 2 लिखना कंपल्सरी है. अगर यहाँ पे 1 नहीं लिखते तो चल जाता. 2-isopropane. दिस इज द IUPAC नेम. लेकिन अगर आप इसका कॉमन नेम बोलेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. ये 2 टर्मिनल कार्बन्स हैं, लेकिन बॉन्ड जो है आपका खुला है, टर्मिनल पे नहीं खुला. टर्मिनल कार्बन पे बॉन्ड अगर खुलेगा तो N वर्ड लगेगा, और टर्मिनल पे नहीं खुला, बीच के कोई कार्बन पे खुला तो आइसो वर्ड लगेगा. प्रोपाइल 2 तरह के होंगे, N-प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल. सारे केसेस के लिए नहीं आएगा. प्रोपाइल 2 तरह के होंगे, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल. दिस इज आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा है सामने. CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br. 4 कार्बन है. IUPAC नेम, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है. अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, तो ब्रोमो किस पे अटैच है? 4 नंबर पे, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं. और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, तो ब्रोमो 1 नंबर पे आ रहा है. तो नंबरिंग राइट साइड वाली सही है. इस पे 1, 2, 3, 4. पहली वाली जो नंबरिंग करी थी लेफ्ट साइड से, वो रॉन्ग है. तो इसका हो गया आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन. 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4. और इसका कॉमन नेम आप लिखेंगे. कॉमन नेम लिख करके आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे. ओके स्टूडेंट, अगर हम 4 कार्बन को चेन लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I. इसमें 3 टर्मिनल्स कार्बन हैं. 1 टर्मिनल, 2nd टर्मिनल, 3rd टर्मिनल. नंबरिंग आप कहां से कर सकते हैं IUPAC के लिए? 1, 2, 3 एक नंबरिंग, 1, 2, 3 दूसरी नंबरिंग, 1, 2, 3 तीसरी नंबरिंग, 1, 2, 3 चौथी नंबरिंग, या 1, 2, 3. आप क्या देख रहे हैं? हमेशा यहां पे 2 आ रहा है, लेकिन नंबरिंग वही करेक्ट होगी जिसमें I पे कम नंबर आए.
आई पे नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3 दो नंबरिंग सही हो सकती है। यानी दोबारा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं CH3 CH CH2 CH3 और ये I, तो 1 2 3 या तो यूं ले सकते हैं या 1 2 3 ये ले सकते हैं। दोनों ही केस में एक कार्बन छूट जाएगा। अगर आप यूं लेते हैं तो ये वाला कार्बन छूट जाएगा, अगर आप यूं लेते हैं तो ये वाला कार्बन छूट जाएगा। दोनों ही कार्बन 2 नंबर से अटैच हैं। तो इसको तो हम जो छूटेगा 3 की चेन हो गई, रूट वर्ड हो गया प्रो, 1 पे आइडो हो गया 1 आइडो और 2 पे मेथाइल 2 मेथाइल, CH3 को मेथाइल बोलेंगे और प्रीफिक्स में ही बोलेंगे। और 3 कार्बन की चेन जिसपे आपने नंबरिंग करी प्रोपेन। ये तो आपका IUPAC नेम हो गया 2 आइडो प्रोपेन। लेकिन अब अगर हम इसका कॉमन नेम बोलें, कॉमन नेम में साइड चेन नंबर का यूज नहीं होता। कॉमन नेम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करे जाते हैं। पूरे स्ट्रक्चर में टोटल कार्बन 4 कार्बन को ब्यूट, और क्योंकि हाइड्रोजन लगे सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटाइल वर्ड का यूज करना है हमको। 4 कार्बन के 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल। कैसे, सामने देखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। ये 4 कार्बन है, टर्मिनल पे बॉन्ड खुला है, नॉर्मल ब्यूटाइल। जैसे हमने प्रोपेन के केस में 3 कार्बन पे 2 केस बताया आपको, नॉर्मल और आइसो। उसी तरह से 4 कार्बन पे 4 पॉसिबल, एक सामने आ गया। फिर दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। इसमें टर्मिनल का बॉन्ड खुला है, 3 की चेन है और एक साइड में चेन है। कैसे भी बना हो ये 3 की चेन और एक साइड चेन में कार्बन और टर्मिनल पे बॉन्ड खुला हो तो ये बोला जाएगा आइसो ब्यूटाइल। यानी ये आइसो ब्यूटाइल लिखा हुआ है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड। तीसरा स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चेन 4 की ही रहेगी लेकिन टर्मिनल पे बॉन्ड नहीं खुला होगा। बॉन्ड खुला होगा, 2 टर्मिनल है, दोनों को छोड़ दीजिए, 2 में से बचे जो कार्बन उनमें से कोई बॉन्ड खुला है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल ये तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है। और चौथा है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और 3 टर्मिनल हैं और किसी भी टर्मिनल पे बॉन्ड नहीं खुला। इसे बोला जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इसका नेम तो मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द IUPAC name of secondary butyl bromide? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का IUPAC नेम क्या है? ऑप्शन ए 2 मेथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। ऑप्शन बी 2 मेथाइल 1 ब्रोमो
प्रोपेन। ऑप्शन सी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ऑप्शन डी 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। कठिन क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि पहले आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और आप नहीं जानते सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बनाना, तो फिर IUPAC नहीं लिख पाएंगे। पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बनाए, और सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए इसीलिए मैंने रब नहीं किया। ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसमें ब्रोमाइड लगाना है तो यहाँ ब्रोमाइड लगेगा, बाकी मैं सब रब कर दे रहा हूं। ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर। अब इसकी आप नेमिंग करेंगे अगर, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4। इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 यहाँ 3 आएगा, तो क्या होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी तरह से हम नेक्स्ट और एग्जांपल्स आपको करा रहे हैं। सपोज कीजिए हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे Cl, सिंगल बॉन्ड CH, नीचे Cl, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें कॉमन नेम लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, IUPAC ज्यादा जरूरी है। नंबरिंग हम इधर से करें अगर, तो 1 2 3 4, तो ये 2 और 3 पे नंबर आ रहा है, ये ग्रुप लगे हैं 2 पे और 3 पे। अगर हम इधर से करें 1 2 3 4, तो भी 2 3 आ रहा है। एक क्लोरो 2 पे लगा है, एक क्लोरो 3 पे लगा है। दोनों नंबर लिखेंगे 2, 3। डाई क्लोरो, 2 बार क्लोरो लगे हैं, सेम लगे हैं, तो एक 2 बार क्लोरो क्लोरो नहीं लिखेंगे, 2 क्लोरो 3 क्लोरो ऐसे नहीं लिखेंगे, एक बार में दोनों लिख दीजिए 2, 3 डाई क्लोरो। कार्बन कितने हैं? 4 ब्यूटेन। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH I एंड I। ये आपका 1 2 3, ये जेम की कैटेगरी का है, एक ही में लगा हुआ है दोनों। तो 1 1 1 1 डाई आयोडो प्रोपेन, या इसका कॉमन नेम कह सकते हैं प्रोपाइल जेम डाई हैलाइड, प्रोपाइल जेम या जेम प्रोपाइल डाई आयोडाइड। इसी तरह से 5 कार्बन के केस में 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 पॉसिबल हैं 5 में। कैसे? कॉमन नेम के लिए CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड, ये नॉर्मल बोला जाएगा। जिसके बाद CH3 CH CH2 CH2 CH3, ये सेकेंडरी बोला जाएगा। CH3 CH, नीचे CH3 CH2 CH2, ये आइसो बोला जाएगा। इसके बाद CH3 C, ऊपर CH3, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये नियो बोला जाएगा, नियो। और CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3, नीचे CH2 CH3, ये बोला जाएगा आपका टर्शियरी। नॉर्मल पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल एंड टर्शियरी पेंटाइल। नियोपेंटाइल को हम अमाइल भी कह सकते हैं, नियोपेंटाइल को अमाइल भी कह सकते हैं। तो अगर हमने एक स्ट्रक्चर दिया, यहां पे हमने नाम लगाया I,
तो कॉमन नेम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड, सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड। और अगर हम इस पे IUPAC करेंगे 1 2 3 4 5 2-आइडो पेंटेन। और उसी तरह से अगर हम यहां पे लगा दें Cl, तो इसको हम बोलेंगे नियोपेंटाइल क्लोराइड। और IUPAC करेंगे तो यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। ये दोनों कार्बन छूट जाएंगे, दोनों 2 नंबर पे छूटे हैं। 2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरो पहले बोलना पड़ेगा, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके स्टूडेंट, देखिए अब कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में बता दें जो एरोमेटिक कैटेगरीज में आते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंजीन। और इनके नेमिंग कैसे करी जाएगी, यहां पे हमने Cl लगा दिया, इट विल बी कॉल्ड क्लोरो बेंजीन। फिर से देखिए Br ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट देखिए CH3 Br, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 2 ब्रोमो, IUPAC नेम है ये, 2 ब्रोमो टालुइन, टालुइन 2 ब्रोमो टालुइन। और कॉमन नेम क्या होगा, आर्थो, वो लिखा जाता है आर्थो ब्रोमो टालुइन, आर्थो ब्रोमो टालुइन। फिर से देखिए रिंग Cl एंड Cl, नंबरिंग होगी 1 2 3। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 क्लोरो 3 क्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। और कॉमन नेम क्या होगा, मेटा, मेटा के लिए हम लिखेंगे डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देखिए CH3 एंड I, नंबरिंग होगी 1 2 3 4, 4 आयोडो टालुइन। और इसका कॉमन होगा पैरा, पैरा आइडो टालुइन, पैरा आइडो टालुइन। नेक्स्ट देखिए Br एंड Br, नंबरिंग होगी 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5। तो IUPAC ने 1 पे ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमो है और 5 पे ब्रोमो है, तो क्या नेम हो जाएगा 1 3 5 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो बेंजीन। और इसका कॉमन नेम होगा सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। फिर से देखिए Br एंड Br, नंबरिंग होगी 1 2 3। इसका IUPAC नेम आपको लिखना है, कॉमन हम बता देते हैं, इसका कॉमन नेम होगा एडजेसेंट ट्राइब्रोमो बेंजीन।
ट्राइब्रोमो बेंजीन, एडजेसेंट ट्राइब्रोमो बेंजीन। स्टूडेंट अभी भी बहुत सारे नॉमेनक्लेचर हैं, आपको कोई डाउट्स है तो आप हमको भेज सकते हो। और वैसे मैं आपको जो क्वेश्चन भेजूंगा उसमें कुछ और भी बताऊंगा, और अब ये चैप्टर चलेगा, जो प्रिपरेशंस होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसमें भी नेमिंग आती रहेगी। आप कंटिन्यूसली वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि शुरुआत की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे आपको पता चलता है कि हाँ वीडियो में चेंज आ रहा है। तो कल फिर हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ में, जिसमें हम कुछ नेमिंग बताएंगे और साथ साथ प्रिपरेशंस के बारे में बताएंगे। ओके, गुड बाय।